Go. Yes, very good morning, boys and girls. I welcome you to yet another session of knowledge sharing, where we have decided that before we start our 11th standard syllabus, let us have some general knowledge about the various concepts of commerce. कॉमर्स के बहुत सारे concepts के बारे में हम जनरल नॉलेज ले रहे हैं. In the last lecture, we have completed a discussion on tax, where we understood that there are two types of taxes. What are two types of taxes? Direct tax and indirect tax. What is direct tax? When a tax is levied on a person and the incidence of the payment lies on the same person, it is called as direct tax. What is indirect tax? When a tax is levied on a person but the incidence of payment is on some other person, it is called as indirect tax. Examples of direct tax are income tax. An example of indirect tax are GST. We have only one indirect tax in India, that is GST. My dear friends, in the last lecture, we have started a discussion on the word bank. So before we start today's lecture, let us recollect whatever we understood in the last lecture. What was the definition we understood of the bank? That bank, kahan gayi meri drawing? Where is my drawing? Yes, here it is, definition. What is bank? Bank is a financial institution whose primary function is of accepting deposits and granting loan. Bank is a financial institution which accepts deposits and grants loan with the aim of earning profit. क्यों करती है? आपसे पैसे लेती है, आपके अकाउंट में पैसे जमा करती है, लोगों को लोन देती है. क्यों करती है बैंक? काम करने के लिए कुछ नहीं इसलिए करना है? नहीं. ये सब क्यों करती है बैंक? क्योंकि उनको इसमें से प्रॉफिट मिलता है. क्योंकि उनको इसमें से प्रॉफिट मिलता है. Let us continue with the same discussion. Then I was explaining you the hierarchy of banks. किसी भी देश में बैंक की हायरार्की क्या होती है? किसी भी देश की अपेक्स बैंक यानी सबसे उच्च स्तरीय बैंक जो सभी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, वो होती है देश की सेंट्रल बैंक. वो होती है देश की सेंट्रल बैंक. इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. I explained you one more term. What was that term? It was about currency printing. I gave you brief knowledge about currency printing. In India, all the coins and the 1 rupee note is issued by the central government. All the coins and the 1 rupee note is issued by the central government. Currency of all the denomination except the 1 rupee note and the coins are issued by the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is the central bank of India. इसी बेसिस पे मैंने आपको होमवर्क दिया था, where I asked you to write down the name of 10 countries and the central bank of those countries. Have you written? Yes, tell me the examples. इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके. यूके कौन सा? बैंक ऑफ इंग्लैंड. हाँ. साउथ अफ्रीका रिजर्व बैंक. हाँ. थाईलैंड बैंक ऑफ थाईलैंड. वेट, हाँ बताइए राठी जी. पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहां की सेंट्रल बैंक है. हाँ. श्रीलंका के बैंक का है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका. एनीबडी? चाइना? हाँ. पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इज द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना. यस. जापान? बैंक ऑफ जापान. अजून सांग. अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन सा है? द फेडरल बैंक. हाँ. स्विट्जरलैंड स्विस नेशनल बैंक. हाँ. कनाडा बैंक ऑफ कनाडा. रोहित बताओ कोई एग्जांपल्स. डेनमार्क नेशनल बैंक. कोलंबिया बैंक ऑफ रिपब्लिक कोलंबिया. पीछे पवार. इजिप्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इजिप्ट. ब्राजील सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील.
कोरिया बैंक ऑफ कोरिया, हाँ। ऑस्ट्रिया यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ओके। अफगानिस्तान बैंक ऑफ अफगानिस्तान, हाँ। डुबेवार, इंडोनेशिया बैंक, इंडोनेशिया। ग्रीस यूरोपियन सेंट्रल बैंक, रशिया बैंक ऑफ रशिया। आगे निळे, हम्म आगे इधर अग्रवाल जी। हांगकांग का नाम क्या है? हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी, हाँ। हम्म ठीक है। नाउ दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल बैंक। व्हाट डिड आई से? इन एनी इकोनॉमी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो अपेक्स बैंक होती है, जो वहां के देश के बैंकिंग सिस्टम को हैंडल करती है, इट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल बैंक। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक। इंडिया की सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक और अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। डैडी बैंक, सब बैंकों के पिताजी है वो, है ना। हमारे देश में कैसे हायरार्की है? सबसे ऊपर होती है सेंट्रल बैंक, उसके बाद होते हैं कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक के बाद होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, राइट। सो लेट अस टेक अ डिस्कशन अहेड। अब हमने डेफिनेशन तो उस दिन समझा था, दैट बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट बैंक इज अ financial institution which accepts deposits and grants loan with the aim of earning profit, which accepts deposits and grants loan with the aim of earning profit, which accepts deposits and grants loan with the aim of earning profit. Now let me take an example where you can understand how does a bank earn profit by accepting deposit and granting loan. Okay, Navagadi Namaraj. तुझीच काढायला ड्रॉइंग, हां. नाव काय तुझं? श्रीयश, ओके. श्रीय यश, अच्छा. नहीं, श्रीय यश, अच्छा. दो नाम एक काम, है ना, ऐसा. वो एक बाम दो काम, दो काम एक बाम, वैसा. दो नाम श्री. मैं श्री बुलाऊ या यश बुलाऊ? मतलब ये अच्छा आहे. हा, चॉईस तुम्हारी. तुला काय आवडतं ग? श्री आवडतं की यश आवडतं? कधी म्हणाल ए यशू, कधी म्हणाल की श्री, जो तुझे पसंद है वो ले ले, है ना. क्या बुलाने का दुबे बार अपन इसको क्लास में? श्री बुलाने की यश बुलाने का? यश. नाम तो सुना होगा, है ना. एकदम ऐसा बॉलीवुड की हीरो के जैसे नाम लगता है, ऐसे यश. ठीक है. अब यश बाबू जो है, इनके पास बहुत पैसा है. इनके पास 10 लाख रुपए है. इनके पास कितने हैं? 10 लाख रुपए. अब यश बाबू बोले कि 10 लाख रुपए का क्या करे. तो मेरे स्टूडेंट है, मेरे पास आए और बोले सर मेरे पास ये 10 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए का मैं क्या करूं? आइडियली घर की तिजोरी में पड़े हैं, इसको कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेश करना चाहता हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेफ हो, जहाँ मेरा पैसा सेफ रहे. तो मैंने क्या कहा, वो जो देना बैंक है ना, उस देना बैंक में तुम्हारे पैसे फिक्स डिपॉजिट बतौर जमा करवा दो. हैव यू हर्ड अबाउट फिक्स डिपॉजिट्स? बोलोगे ना पिताजी. 3 एफडी की है, एक बड़ी दीदी की शादी की, एक समृद्धि की शादी की, एक तेरी शादी की, तीनों बहनों की 3 शादियों की 3 एफडी करके रखे हैं. फिक्स डिपॉजिट क्यों गौरी? हाँ मिनम्मा, पापा ने की एफडी शादी के लिए? हाँ, लड़कियों के लिए एफडी शादी के लिए की जाती है, लड़कों को फंडा नहीं है ना, हुंडा आता है अपने पास, माल आता है, इनकमिंग है. तब यश के बाद 10 लाख रुपए है, यश के पास 10 लाख रुपए है, और अब यश मुझे पूछ रहा है कि सर ये 10 लाख रुपए का मैं क्या करूं. तो मैंने क्या कहा, ये 10 लाख रुपए तुम काम करो, देना बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दो 5 साल के लिए,
और अगले 5 साल तक मुझे कोई काम नहीं है पैसे का, 5 साल के बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ बिजनेस करूंगा, उस वक्त मुझे पैसे की जरूरत होगी, आज तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तो व्हाट डिड आई एडवाइज हिम? टू डिपॉजिट दिस 10 lakh rupees for a period of 5 years as fixed deposit with Dena Bank. Now understand the transaction. Commercial bank is a financial institution. It's a financial institution whose primary function is of accepting deposits. लोगों से पैसे लेकर जमा करना, डिपॉजिट करवाना, ये प्राइमरी काम है पहला। फिर अब देना बैंक क्या करेगी? यश बाबू से 10 लाख रुपए लेगी और उसके पैसे फिक्स डिपॉजिट बतौर उनके पास जमा करवाएगी। फ्री में देगा क्या यश बाबू पैसे, या उसके ऊपर कुछ रिटर्न लेगा? तो क्या मिलता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर? इंटरेस्ट। क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज, है ना, ब्याज मिलता है उसके ऊपर। तो नॉर्मली मार्केट में आज जो रेट चल रहा है, 5 साल का अगर आप फिक्स डिपॉजिट करो तो लेट्स से द इंटरेस्ट विच इज गिवन इज 7%. The interest which is given is 7%. Yes or no? The interest which is given is 7%. So Dena Bank is accepting deposits of 10 lakh rupees from Yash, and they have promised him to pay the interest of 7%. अब मुझे बोलो 10 लाख का 7% कितना हुआ यश? 70,000। 5 साल के लिए हर साल कितना देना पड़ेगा? 70,000। तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया? 3,50,000। कितना हुआ? 3,50,000। यानी 5 साल के बाद यश को कितना पैसा मिलेगा? 10 लाख प्लस 3.5 इंटरेस्ट इज इक्वल टू 13.5। कितना मिलना है? 13.5। देना बैंक को कितना दे रहा है आज वो? 10 लाख रुपए। 5 साल के बाद देना बैंक को इसको कितने देने हैं? 13.5 लाख। अब मुझे बात बोलो, पैसे अगर देना बैंक अपनी तिजोरी में ले जाकर रख दे तो पैसे बढ़ने वाले क्या अपने आप? अगर वो बैंक पैसे इसके पास से ले और उनके तिजोरी में रख दे, उनके तिजोरी में कोई जादू है क्या? ओम बट स्वाहा कि 10 का 13 हो गया, है ना? ये जो पैसा कुछ ले रही है इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा ना, वरना ये एडिशनल 3.5 लाख रुपए बैंक कहां से देगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इससे 10 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन इसको रिटर्न कितने देने हैं? 13.5 लाख। ये 3.5 लाख रुपए जो इंटरेस्ट इसको देना है वो बैंक कहां से देगी? बैंक को कोई रेवेन्यू सोर्स लेकर पड़ेगा ना, है ना? सो इसीलिए बैंक क्या करेगी? बैंक जो डिपॉजिट अपने पास आते हैं उसी डिपॉजिट का इस्तेमाल करके उसे लोन देती है। बिजनेस किसको करना है यहाँ पे? Who wants to start his own business? एंटरप्रेन्योर किसे बनना है आगे लाइफ में? बिजनेस किसको तुम्हें करना है? सोहम को करना है, राठी जी को करना है, अग्रवाल जी को करना है, पवार को करना है। चलो भाई, अभी के लिए सोहम की तरफ जाते हैं अपन। सफेद हाईलाइट किया क्या तूने? दिख रहा है क्या व्हाइट हाईलाइट? अभी सोहम है, ठीक है? अब सोहम को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। लेट्स फॉर एग्जांपल से ही वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन फर्टिलाइजर शॉप। उसे क्या करना है? खुद की फर्टिलाइजर शॉप स्टार्ट करना है। लेकिन फर्टिलाइजर की शॉप स्टार्ट करने के लिए उसे लोन की जरूरत है, उसे लोन की जरूरत है। अब लोन उसे कौन देगा? लोन उसे कौन देगा? बैंक। तो सोहम देना बैंक के पास जाता है और लोन की एप्लीकेशन फाइल करता है। देना बैंक के पास जाता है और लोन की एप्लीकेशन फाइल करता है। देना बैंक के पास 10 लाख रुपए किसने दिए? यश ने। उसको देना बैंक ने कितना प्रॉमिस किया है? 7%। अब 10 लाख रुपए का लोन किसको चाहिए? 10 लाख रुपए का लोन किसे चाहिए? Who needs 10 lakh rupees of loan? Soham. Now what they will do?
they will collect the deposit from Yash and the same money will be utilized to give loan to Soham. इधर से लिया और इसको पकड़ाया. Commercial bank is a financial institution which accepts deposits and grants loan with the aim of earning profit. Accepting deposit समझ गया, granting loan समझ गया, इससे पैसा लिया और इसको लोन दिया, ठीक है. With the aim of earning profit. How profit? Understand. The rate at which the bank lends money or give loan is high, and the rate of interest which they pay on deposit is low. The rate of interest which the bank charge on loan is high. The rate of interest which they pay on deposit is low. तो by the default अगर आप कहीं भी किसी भी बैंक में जाकर इंक्वायरी करो, बिजनेस लोन जो है वो 12% से कम कहीं भी नहीं. लेट्स फॉर एग्जांपल से इट इज 14%. 10 लाख रुपए किसके हैं? यश के. उससे 10 लाख रुपए ले लिए. उसको ब्याज कितना देना है? 7%. लोन किसे देना है? सोहम को. उसको कितने परसेंट पे देना है? 14%. यानी नेट बैंक का प्रॉफिट क्या हुआ? 14% माइनस 7%. 7% प्रॉफिट हुआ उनका. यस और नो? इसीलिए लॉजिक क्या कहता है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज पेड बाय द बैंक ऑन डिपॉजिट इज लो and the rate of interest which they charge on loan is high. Or you can simply say rate of interest on loan is greater than rate of interest on deposits. Yes or no? क्योंकि ये हाई रहेगा तभी इस डिफरेंस में वो प्रॉफिट कमाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अब देखो इसको लोन कितने रेट पे दिया है. अब एग्जांपल पे आ जाओ फिर से एक बार. एक साइड यश है, दूसरी साइड सोहम है. दिस इज डिपॉजिट. ये पैसा उन्होंने लिया है बतौर डिपॉजिट. एंड दिस इज लोन विच दे हैव गिवन. हाँ या ना? अब इनसे डिपॉजिट कितना लिया है? 10 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7%. इनको कितना लोन दिया है? 10%. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 14%. टेन्योर 5 ईयर्स. टेन्योर 5 ईयर्स. ओके, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल रखता हूं. टेन्योर कितना है? 5 ईयर्स. 5 ईयर्स. अब इनका रिपेबल अमाउंट कितना है? 10 lakh of principal plus 3.5 lakh of interest is equal to 13.5 lakhs. Yes or no? Yes or no? सोहम के केस में लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14%. तो वो कितना हुआ? 1.4 लाख पर ईयर मल्टीप्लाइड बाय 5. कितना हुआ? कितना हुआ? 10 लाख प्लस 7 इज इक्वल टू 17. यानी जब बैंक सोहम को 5 साल के लिए लोन देगी तो 5 साल के बाद सोहम से कितना रिकवर करेगी? 17 लाख. 5 साल के बाद यश को कितना पे करेगी? 13.5 लाख. यानी बैंक का प्रॉफिट क्या हुआ? 17 लाख माइनस 13.5 इज इक्वल टू 3.5 लाख. Are you getting my point? Hence, what is proved? What is proved here? That bank is a financial institution which accepts deposits and grants loan with the aim of earning profit. Bank is a financial institution which accepts deposits or grants loan with the aim of earning profit. Yes or no? Now currency printing को लेकर मैंने कहा था currency printing. करेंसी प्रिंटिंग में 2 तरह से क्लासिफिकेशन है हमारे पास. जहां पर 1 रुपी नोट और कॉइन्स, ये कौन इशू करता है हमारे पास? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो किसी भी कॉइन के ऊपर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं दिखेगा, ना ही 1 रुपी नोट पे दिखेगा. वहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट दिखेगा. लेकिन
all currency notes except 1 rupee are issued by the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is the central bank. Okay. Now coming to printing of currency on the later part, let's first understand the various hierarchies. हमारे इंडिया में सबसे हायर लेवल पे या अपेक्स बैंक होती है वो कौन सी है? हमारी सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक क्या है इंडिया की? आरबीआई. ओके. इस सेंट्रल बैंक के अंतर्गत जो काम करते हैं वो है कमर्शियल बैंक, जहां हमारा अकाउंट होता है. हाय ना, यस और नो? क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक. नाउ दिस commercial bank are either private banks or are nationalized bank, or you can say public bank or government bank, or can be foreign bank. When we see private bank, you know various example, but I'll give you some examples where you understand which commercial bank or private bank. Okay. First point, HDFC, then we have Axis Bank, Kotak Bank. These all are private commercial bank. Why private commercial bank? Because major stake, more than 51% of holding in this bank is of private entity. Okay. But when more than 51% of holding in a bank is by a government, that is central government or the state government, then that banks are commercial bank but nationalized. Those banks are commercial banks but nationalized. Example कौन से इसके? SBI. सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है? SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. All these banks are government banks, government commercial bank. Hence they are called as nationalized bank. Other than this are foreign banks. Foreign banks वो है जहाँ पे मेजर होल्डिंग ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की है कि जो बाहर की है, हमारे यहाँ की नहीं. एग्जाम्पल सिटी बैंक नाम सुना होगा अगर आपने. सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सुना है कहीं क्रिकेट में और में कहीं पे? स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, ये सारे बैंक हमारे यहाँ पर ऑपरेट करते हैं. लेकिन इनका काम मेट्रो सिटी में ज़्यादा है, हमारे जैसे परभणी जैसे सिटीज़ में नहीं है. सुपर मेट्रो है ना परभणी अपना, जैसे सुपर मेट्रो शहर में उसका काम नहीं है. तो पुणे वगैरह आप जाओ, मुंबई जाओ तो वहाँ पे इनके ब्रांचेस, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. तो सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दिस आर फॉरेन बैंक्स. फॉरेन बैंक्स क्यों? क्योंकि इसमें मेजर स्टेक किसका है? किसी फॉरेन बैंक का है. प्राइवेट बैंक कौन से? जहाँ पे इंडिया में रहने वाले प्राइवेट लोगों का होल्डिंग है, तो उसे हम कहेंगे प्राइवेट बैंक. इंडिया के गवर्नमेंट का अगर किसी बैंक में होल्डिंग है तो वो हो गई नेशनलाइज्ड बैंक. तो वो कौन सी थी? SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. जहाँ प्राइवेट लोगों का शेयर होल्डिंग है वो क्या हो गया? HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा एटसेट्रा. और जहाँ पे फॉरेन बैंक्स का होल्डिंग है वो क्या हो गया? सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. अभी ओके. तो हमारे यहाँ सबसे ऊपर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्या मैं मेरा अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खोल सकता हूँ क्या? नहीं. HDFC अपना अकाउंट खोल सकती है. क्यों? क्योंकि वो बैंकों की बैंक है. ये जितने भी बैंक है ना, उन सब की बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मैं मेरा पर्सनल अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं खोल सकता. मेरा पर्सनल अकाउंट कहाँ खुलेगा? इन कमर्शियल बैंकों में खुलेगा, चाहे फिर वो प्राइवेट हो, नेशनलाइज हो, फॉरेन हो, किसमें भी खुल सकता है. लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट नहीं खुलता. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इन बैंकों का अकाउंट खुलता है या फिर सरकार का खुलता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का. किसी प्राइवेट एंटिटी का अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं खुलता. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट की बैंक होती है. जैसे हम हमारा व्यवहार एक बैंक के थ्रू करते हैं, जैसे HDFC है, यूको है, SBI है, एटसेट्रा, उसी तरह से गवर्नमेंट अपने बैंक के पूरे व्यवहार RBI के थ्रू करते हैं. इसलिए गवर्नमेंट की बैंक कौन है? RBI. सभी बैंकों की बैंक कौन है? RBI. राइट. सो RBI इज अ सेंट्रल बैंक
where private entities are not allowed to open their accounts. We open our accounts in commercial bank or cooperative banks. अब इस हायरार्की में थर्ड आते हैं कोऑपरेटिव बैंक. Now what is a cooperative bank? How it is different from nationalized bank or commercial bank? Commercial banks are set up under the Banking Regulation Act. They are set up under the Banking Regulation Act. But cooperative banks are set up under Cooperative Societies Act. They are set up under Cooperative Societies Act. A bank which is set up under the Cooperative Society Act and does the banking business क्या है? Accepting deposits, granting loan with the aim of earning profit. Accepting deposits, granting loan with the aim of earning profit. इसे क्या कहते हैं? बैंकिंग बिजनेस. तो ऐसी कोऑपरेटिव संस्था जो पैसे एक्सेप्ट करती है और लोन देती है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अ कोऑपरेटिव बैंक. इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारे परभणी में है. बुल्ढाना अर्बन, नाम पूरा पढ़ो कभी, बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बरोबर. सुंदरलाल सावजी कोऑपरेटिव बैंक, सांगली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आर्यवैश्य कोऑपरेटिव बैंक, है ना. इन सभी बैंकों के नाम के सामने क्लियरली शब्द मेंशन है क्या? कोऑपरेटिव बैंक. मतलब ये ऐसी बैंक है जो किसके अंतर्गत सेटअप है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इज डिफरेंट. The organizations which are set up under the Cooperative Societies Act are called as cooperative societies. And out of those cooperative societies which work in the banking business are called as cooperative banks. Are you getting my point? Any organization which is set up under the Cooperative Society Act is called as a cooperative society. Yes? But out of those cooperative society which run the banking business are called as cooperative banks. Are you getting my point? Is everyone clear? तो हमारे इंडिया के बैंक के हायरार्की में सबसे ऊपर कौन आता है? सेंट्रल बैंक. सबसे ऊपर कौन आता है? सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक के नीचे कौन आता है? प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक में कौन से तीन टाइप है? प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, फॉरेन बैंक. प्राइवेट बैंक वो जहां पर होल्डिंग किसकी है? प्राइवेट एंटिटीज की. अंबानी, टाटा, इन लोगों की अगर किसी बैंक में होल्डिंग है तो वो क्या बन गई? प्राइवेट बैंक. उसके एग्जाम्पल क्या है? HDFC, Axis Bank, then again we have Kotak, ICICI, etc. नेशनलाइज्ड बैंक क्या है? जहां पर होल्डिंग किसका है? गवर्नमेंट का है. कौन से है उसमें? SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. फॉरेन बैंक में कौन से हैं? सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड एटसेट्रा. अभी ओके. ये सारे क्या हो गए मेरे? कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक कितने तरह के होते हैं? तीन. प्राइवेट, पब्लिक एंड फॉरेन. पब्लिक मतलब नेशनलाइज. इसके अलावा हायरार्की में थर्ड क्या आता है? कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स आर दोज बैंक व्हिच आर सेट अप अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट एंड डू द बैंकिंग बिजनेस. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, इट इज ऑल्सो कोऑपरेटिव बैंक. इट इज ऑल्सो अ कोऑपरेटिव बैंक. अभी क्लियर? ये हो गया हमारा बैंकिंग सिस्टम. ये हो गया हमारा बैंकिंग सिस्टम. अब बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन. लेट मी ब्रीफ यू ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. बैंक क्या करते हैं? एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं या लोन ग्रांट करते हैं. ओके. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन. Now deposits are of two types. The deposits are classified as of two types. One is called as time deposits. Another is called as demand deposits. Deposits are either called as time deposits or demand deposits. Are you following me? Either they are called as time deposits or either they are called as डिमांड डिपॉजिट्स. टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट के बीच का फर्क समझने की कोशिश करें. टाइम डिपॉजिट्स आर वन विच कैनॉट बी डिमांडेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड.
and demand deposits are one which can be demanded any time by the depositor. I took example before for explaining you the concept of how does a bank earn profit. What did we see in that particular case? That Master Yash is deposit 10 lakh rupees for a period of 5 years. Yes or no? For a period of 5 years. Is the time of deposit fixed? Is the time of deposit fixed? Yes. What is the time deposit? 5 years. Which means once the money is deposited, same cannot be claimed before the expiry of 5 years. Means Yash cannot demand his money back from the bank till the expiry of the period of 5 years. Let's take an example. तारीख लेंगे तो समझ में आएगा. 1 जनवरी 2022 को इसने ये पैसे 10 लाख रुपए, इधर ध्यान दो अग्रवाल जी, 1 जनवरी 2022 को इसने ये 10 लाख रुपए बैंक में जमा किए. कितने पैसे जमा किए? 10 लाख रुपए. कितना टाइम के लिए जमा किए? 5 साल. 2030, 2024, 2025, 2026, 2027, यानी कि 31 दिसंबर 2027 तक के लिए इसने पैसे जमा किए. यस और नो? नाउ लेट्स एग्जांपल से अभी तो इनकी उम्र 16 साल है ना? 16 साल है. 16 साल ठीक है. अब 18 साल के होने के बाद इनको लग रहा है कि हमने शादी का, नहीं बोल सकते, शादी के लिए लड़कों की उम्र 21 साल है बेटा, घाई करू नकोस. 21 मुलं मॅच्युअर्ड नसतात 21 होईपर्यंत, तर लग्न करू शकत नाही. उगाच स्वप्न बांधू नको, इलिगल असतो. मुलींचं वेगळं आहे, 18 इयर्स. कॉमर्स पढ़ रहे हो, लॉ पता होना चाहिए. व्हाट इज द एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स? 18. बॉयज इट इज, हां, नाही तर कायदेशीर कारवाई होईल. आता तो शिंदे सरकार है, छोड़ेगा नहीं, झुकेगा नहीं, है ना? तो बात ऐसा है कि यश ने पैसा कितना जमा किया है? 10 लाख रुपए. कितने साल के लिए जमा किया है? 5 साल के लिए. He deposited the money on 1st of January 2022 and it is deposited till the period of 31st of January 2027. Let's say on 1st of January 2025 Yash wants his money back. He goes to the bank, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए. बैंक पैसा देगा ना? क्यों नहीं देगा? Because it is a time deposits. Time deposits are one which are kept for a specified time period. और जो व्यक्ति पैसा डिपॉजिट करता है वो उस पैसे को टाइम एक्सपायरी तक क्लेम नहीं कर सकता. Are you getting my point? Are you getting my point? Yes or no? What is time deposits? Time deposits are one which are deposit for a particular time period. Time deposits are one which are deposit for a particular time period. और कोई भी व्यक्ति उस पैसे को टाइम पीरियड एक्सपायर होने तक क्लेम नहीं कर सकता. यानी कि यश ये पैसे बैंक से कब मांग सकता है? ओनली ऑन 31st of December 2027. 31 दिसंबर 2027 को जब 5 साल पूरे होंगे उसके बाद ही वो बैंक में जाकर अपने पैसे मांग सकता है. तब तक वो पैसे नहीं मांग सकता. यानी कि पैसा उसने जो बैंक में जमा किया है वो सर्टन टाइम पीरियड के लिए जमा किया, और जब तक वो सर्टन टाइम पीरियड खत्म नहीं होता तब तक आप बैंक से पैसा नहीं मांग सकते. उसी कंडीशन पे आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम? टाइम डिपॉजिट्स. सेविंग अकाउंट होता है, पता है ना? बहुत से लोग सेविंग अकाउंट का अपना जो एटीएम है उसको यूज करते हैं. कभी एटीएम यूज किए हो? एनीबॉडी? कितने लोगों ने एटीएम यूज किया है? एटीएम यूज किया है? अच्छा, किसी पास कार्ड है? कंसेप्ट से कंसेप्ट पे आ रहे हैं. ओके, थोड़ा चले बाहर, अभी कंसेप्ट से बाहर चले, अभी है ना? बाहर चलते हैं. कुछ
नया बताते हैं, ये सोचा नहीं था बताऊंगा करके, लेकिन हम बताते हैं. क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स. ओके, व्हाट इज अ डेबिट कार्ड? अब मत बोलना इट इज अ कार्ड, वरना वेडिंग कार्ड छपा दूंगा तुम्हारा मैं. हाँ, व्हाट इज अ डेबिट कार्ड? नाम सुना है नहीं बोलने का, नाम तो सुना होगा. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा नहीं. बताओ मुझे, व्हाट इज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड? किसको पता है व्हाट एग्जैक्टली इज अ डेबिट कार्ड एंड व्हाट एग्जैक्टली? गर्ल्स, हाँ हाँ हाँ, यस पावर. तुम्हारे मित्र कहाँ गए? कैसे क्या? हाँ, अच्छा पुणे पढ़ने वाला है. हाँ, वेरी गुड, नाइस. हाँ, ये क्या हुआ? डेबिट कार्ड. और फिर क्रेडिट कार्ड क्या है? हाँ, नहीं पता. हाँ हाँ, डब्बे मार. यस, बोल बेटे. हाँ, एसी बंद कर रहे हैं, एसी बंद कर दे वहां से, नीचे नीचे. हाँ, किसी को मालूम है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या है? राठी, हाँ, जो मालूम वो बोल. हाँ, वेडिंग कार्ड छोड़ के. हाँ, किसमें? हाँ, अच्छा, उसका बिल आता है. ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद द कंसेप्ट, one thing which everyone knows, ये किसको नहीं मालूम पहले वो बता मेरे को. एनीबडी? कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता? कोई है ऐसा? जी सो कन्या फिल इन द ब्लँक्स, श्रीमती डॅश डॅश डॅश. आ, आहे का नाव आपल्याकडे? आणि चिरंजीव. चिरंजीव काय नाव आपलं? चिरंजीव सोहम. हाँ, सोहन की सोहम? सोहन है का? अच्छा, सोहन मोरलवार. सोहन मोरेवार, श्रीमती कोणाचे? चिरंजीव यांचा शुभ विवाह बुधवार दिनांक 15 डिसेंबर 2022 सकाळी 10:30 या शुभ मुहूर्तावर करण्यात. वट एवर, ये तो मालूम है ना सबको. एनीबडी जिसको इसका नॉलेज नहीं है? देखो भाई, इंडिया में हो तो बाकी कुछ हो ना हो, कुछ पढ़ो लिखो मत लिखो, पुणे जाओ, ऐश करो, मजे करो, जो भी करना है करो, एक बात पक्की, शादी जरूर होगी, है ना? तो बी रिलीव्ड कि कोई कवारा नहीं मरने वाला. हाँ, तुझे नहीं करनी शादी? अरे मुन्ना, तो शादी तो सबकी होगी, है ना? तो बात ऐसी है कि वेडिंग कार्ड सबको पता है, ठीक है? ये हुआ डेबिट कार्ड, ये हुआ डेबिट कार्ड. ये हुआ क्रेडिट कार्ड. सर दिखने को तो दोनों सेम दिख रहे हैं, खाली डेबिट और क्रेडिट नाम का फर्क है. नाम के साथ साथ कंसेप्ट में भी फर्क है, नाम के साथ साथ कंसेप्ट में भी फर्क है. समझने की कोशिश करो, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान दोगे तो समझ में नहीं आएगा. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. ओके, अंडरस्टैंड?
What is a debit card? What is a credit card? You are a commerce student. डुबेवार, आपको पता होना चाहिए कि डेबिट कार्ड यानी क्या है और क्रेडिट कार्ड यानी क्या। डेबिट कार्ड मतलब क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड वो होता है जिसका इस्तेमाल हम तभी कर पाते हैं जब मेरे पास बैंक बैलेंस हो। मेरा सेविंग अकाउंट है यूको में, आई हैव अ सेविंग अकाउंट विन यूको बैंक, और मैंने मेरे बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा किए मैंने? 10,000। जब जमा किए 10,000 रुपये राशि से ही मैं खर्च कर सकता हूं। When I can withdraw only maximum up to the amount I have deposited, and the card which is used to withdraw that amount which I have deposited is called as debit card. Are you getting my point? जब कभी भी आप आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हो और सिर्फ उतनी ही रकम विड्रॉ कर सकते हो जितने आपने जमा की है, यानी प्रायर आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, और जमा करने के बाद ही, अग्रवाल जी ध्यान दो, पैसा जमा करने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज अ डेबिट कार्ड। लेट्स से अग्रवाल जी ने अपने अकाउंट में 100 रुपए जमा किए, कैन यू विड्रॉ 500 रुपीज फ्रॉम द कार्ड? नो। So the card from which you can withdraw money only which is deposited is called as a debit card, right? आपके बैंक अकाउंट में जितना डेबिट बैलेंस होगा सिर्फ उतना ही उसमें से विड्रॉ किया जा सकता है। मैंने 1 लाख रुपए मेरे बैंक में जमा किए, तो मेरे डेबिट कार्ड से कितने विड्रॉ कर सकता हूँ? 1 लाख। फिर वो 1 लाख रुपए तक मैं कुछ भी शॉपिंग कर सकता हूँ, कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकता हूँ, उसको पैसे एटीएम से जाकर निकाल सकता हूँ, राइट? What is full form of ATM? डुबेवार, ATM चा फुल फॉर्म पॉवर, हेल्प नाही करायची, ऑटोमॅटिक ट्रान्झॅक्शन मशीन। ATM चा फुल फॉर्म, हाँ, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ATM? ऑटोमॅटिक टेलर मशीन। ऑटोमॅटिक टेलर मशीन, TELLER, ऑटोमॅटिक टेलर मशीन। Clearer concept. The cards which you use are not called as ATM cards. You should not call them as ATM cards. Either call them a debit card or either call them a credit card. What is the difference between debit card and credit card? Debit card के अंदर पैसा जमा करना पड़ता है, और जमा किया गया पैसा जब हम कार्ड के थ्रू यूज करते हैं, that is called as a debit card. What happens in a credit card? We do not deposit any money. We are given some credit limit. Let's say the credit limit given to me is 10,000. So without depositing any money in bank, I can do shopping up to 10,000 rupees. After completing this shopping of 10,000 rupees, I will get a bill. Then after I will pay it to the bank. पहले वाले डेबिट कार्ड में क्या है? एडवांस पेमेंट फिर खर्चा। क्रेडिट कार्ड में क्या सिस्टम है? पहले खर्चा फिर पैसे जमा करना। Are you getting my point? Are you getting my point? So debit card is one where the money is prior deposited, then it is spent through a card. It is called as debit card. What is credit card? The money limit is sanctioned by the bank on a card, and by using that card you can spend up to that limit. After spending up to that limit, you will get a bill where you have to repay for same. पहले वाले एग्जांपल में क्या किया मैंने? 10,000 रुपये बैंक अकाउंट में जमा किए और फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके 10,000 रुपये खर्च किए। दूसरे वाले एग्जांपल में मैंने क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 तक बना ली बैंक के पास से, बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया और क्रेडिट कार्ड के थ्रू 10,000 की शॉपिंग कर ली। 10,000 की शॉपिंग होने के बाद मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल आता है और उसके बाद मैं उसके पैसे का पेमेंट करता हूँ। डेबिट कार्ड में एडवांस पेमेंट और उसके बाद में पोस्ट ट्रांजैक्शन पेमेंट, दोनों का फर्क है। जब मैं मेरे पैसे जमा कर रहा हूं और उसमें से खर्च कर रहा हूं तो मुझे उसके लिए सर्विस चार्जेस या इंटरेस्ट देने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन जब मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं और 1 महीने के बाद उनको उसके पैसे दे रहा हूं, तो बैंक फ्री में काम करती है क्या? द बैंक ऑलवेज रन्स फॉर प्रॉफिट। इसीलिए क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं, डेबिट कार्ड के चार्जेस नहीं होते। द चार्जेस इज नथिंग बट the interest which they recover for the credit limit they have given you.
जो क्रेडिट कार्ड पे 10,000 की जो लिमिट दी है, उसके बदले में जो क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस लेंगे, दे आर नथिंग बट द इंटरेस्ट दे आर रिकवरिंग फॉर द क्रेडिट लिमिट दे हैव गिवन यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बैंक ने मुझे 10,000 की लिमिट दी, मैंने 10,000 रुपए खर्च किए, उसका बिल आकर पेमेंट होने को 1 महीने का टाइम मिलता है। कितना मिलता है? 1 महीने का टाइम। बैंक का पैसा 1 महीने के लिए फ्री में यूज करने देगी क्या बैंक? अल्टीमेटली 1 महीने के बाद जब बिल आएगा वो 10,100 रुपए का होगा। 10,000 रुपए लिमिट के और 100 रुपए चार्जेस, जो पैसा तुमको एडवांस में दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्रेडिट कार्ड इज फॉर चार्ज, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में मैं मेरा पैसा यूज कर रहा हूं तो वहां पे कोई चार्जेस नहीं होते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So interest charges are levied in case of credit card. There is no interest charges in case of debit card. Debit card में हम हमारा पैसा जमा किया हुआ खर्च कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के अंदर हम बैंक का पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए बैंक उसके ऊपर चार्जेस लेगा, यानी कि इंटरेस्ट लेगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड। One more point of difference. Normally, bank do not allow withdrawal of cash from credit card. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप कैश नहीं ले सकते हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, लेकिन कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। कैश विड्रॉल की अथॉरिटी सिर्फ काम पर दी गई है डेबिट कार्ड, क्योंकि वो आपका खुद का पैसा है। आप बैंक से विड्रॉ भी करो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड. Cash withdrawal is allowed in case of debit card. There are no charges in case of debit card. Debit card is where you deposit the money and spend with the help of a card. Credit card is where limit is sanctioned by the bank. You do not deposit money into the bank. Additional charges are levied, which is called as credit card charges, which is also called as interest, where you spend on the card and then you pay it later with the help of a bill. Again, the point to be noted is we cannot withdraw cash in case of credit card. Are you getting my point? Someone might argue कि सर मैं मेरे क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकता हूं। कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर का इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है आप उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। नॉर्मली जैसे मैंने कहा, कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट क्या है? 14% पर एनम, मतलब एनुअली। क्रेडिट कार्ड से तुम कैश निकाले ना तो उसके ऊपर 14% मंथली लगा देते चार्जेस को। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सोचो। इसलिए नॉर्मली कैश विड्रॉ नहीं किया जा सकता। कैश विड्रॉ भी करो तो मौत है। मतलब 100 रुपए के बदले में 1 का डबल ही देना पड़ता है बैंक को। 100 रुपए के बदले में 21 दिन के बाद 100 रुपए ही देना पड़ता है। इतना हेवी चार्ज होता है। इज एवरीवन क्लियर? नाउ व्हाट इज अ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? यस और नो? सबको समझ में आया डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है? ये समझाना जरूरी इसलिए था क्योंकि हम डिपॉजिट समझ रहे हैं। डिपॉजिट में 2 तरह के डिपॉजिट कौन से हैं? टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स आर वन which are deposit for a particular time period and which can be demanded only on the expiry of the time period. यानी टाइम पीरियड का एक्सपायरी के बाद ही आप वो पैसा जो है वो क्लेम कर सकते हो। टाइम डिपॉजिट जो है वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2। पहला होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये तो सबको पता है, एफडी है या ना? भले ही पूरा नाम ना सुना हो, लेकिन एफडी तो सुना है ना? FD is and the second type in time deposit is recurring deposits. Second deposit is called as recurring deposits. Both are time deposits and both can be claimed only on the expiry of the time period, but there is slight difference. In case of fixed deposit, the lump sum amount has to be deposited at the start itself, but in case of recurring deposit, the lump sum amount is to be deposited in installments. जैसे पहले वाली केस में यश ने क्या किया?
पूरी की पूरी 10 लाख रुपए की रकम पहले साल जमा कर दी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट अगर वो करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, रिकरिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट जो है बैंक में वो इंस्टॉलमेंट में किए जाते हैं। इसको जमा कितने करने हैं? 10 लाख रुपए। कितने साल में करने हैं? 5 साल में। सो इट विल बी 10 divided by 5। एवरी ईयर ही विल डिपॉजिट 2 लाख रुपीज। एवरी ईयर ही विल डिपॉजिट 2 लाख रुपीज। यानी 2022 में 2 लाख, 2023 में 2 लाख, 2024 में 2 लाख, 2025 में 2 लाख, 2026 में 2 लाख और 2027 में 2 लाख। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज ये सारा पैसा मांग कब सकता है? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years, नॉट बिफोर। फिक्स डिपॉजिट में पहले साल 10 लाख रुपए जमा कर दिया, 5 साल के बाद कितना मिल रहा है? 10 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट। रिकरिंग डिपॉजिट में हर साल 2-2 लाख रुपए जमा कर रहा है, लेकिन पैसा कब मिलेगा? 5 साल के बाद। कंपेरेटिवली जब स्टार्ट में वंस लमसम अमाउंट देगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, और वही बैंक को 2-2 लाख रुपए करके दोगे थोड़ा ब्याज दर कम रहेगा। लेकिन दोनों भी केस में कॉमन क्या है? फिक्स डिपॉजिट में और रिकरिंग डिपॉजिट में कॉमन क्या है कि पैसा आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा। उससे पहले यश बैंक में जाके पैसा नहीं मांग सकता। डुबेवार उससे पहले पैसा नहीं मांग सकता। 5 साल के लिए पैसा जमा रहेगा, 5 साल के बाद ही आप पैसे ले सकते हो बैंक से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन नॉट क्लेम द मनी फ्रॉम बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। Okay, this is called as time deposits. Time deposits are those deposits which are deposited for a particular time period, and the depositor can claim the amount of deposit only on the expiry of the time period. Now what is demand deposits? Demand यानी कभी भी जाओ मांगो, आपको पैसा बैंक को देना पड़ेगा। So demand deposits are those deposits where the deposits are taken and they are to be paid whenever demanded by the customer. So इसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है सेविंग्स डिपॉजिट। आम आदमी की भाषा में इसको क्या बोलते हैं अपन? सेविंग अकाउंट। क्या बोलते हैं हम इसको? सेविंग अकाउंट। और दूसरा होता है करंट डिपॉजिट। आम भाषा में क्या कहेंगे हम इसे? करंट डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता है बिजनेस का, करंट अकाउंट होता है बिजनेस का, और सेविंग डिपॉजिट होता है इंडिविजुअल का। किसका होता है? इंडिविजुअल। तुम्हारा, मेरा, मिनम्मा का, गौरी का, सोहम का। सुहम क्या है अपना? हाँ, अच्छा, एक काम कर, तेरा श्री उसको दे दे, श्री सो। ओके, सोहन, सोहन, सोहम, यश, श्री यश। हाँ, कहाँ से नाम लाते यार। सोहम अपना अच्छा है, डुबेवार। तो बात ऐसा है कि अब ये लोग पैसा क्या करेंगे? हम सब लोग अपना पैसा बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे। हमें पैसा फिक्स पीरियड के लिए नहीं रखना, क्योंकि हमको मालूम हमको पैसे कभी भी लग सकते हैं। तो हम कभी भी हमारा डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं या बैंक में जाकर पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं। सो हम जिस अकाउंट में पैसा जमा करेंगे उसे कहा जाता है सेविंग अकाउंट। किसी व्यक्ति का जब अकाउंट बनता है उसे क्या कहते हैं हम? सेविंग अकाउंट। अब राठी जी का बिजनेस है, उस बिजनेस में लाखों से पैसे आते हैं, लाखों से पैसे जाते हैं, रोजाना लाखों पैसे आते हैं, लाखों पैसे आते हैं। लेकिन पैसों के व्यवहार को घर पे रखना अलाउड है क्या? नहीं। बहुत बहुत गुंडे लोग हैं हमारे पास, डाकू लोग, गब्बर सिंह, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचता, है ना। ऐसे डाकू ने अगर पैसे लूट लिए तो मुश्किल है, पैसे की सिक्योरिटी नहीं है। तो रोजाना क्या करते हैं इनके पिताजी? बैंक में रोजाना पैसे जमा करते हैं और रोजाना बिजनेस में से उस बैंक में से पेमेंट किया जाता है। तो बिजनेस के बिहाफ पे जब कोई अकाउंट बनाया जाता है जहां पे पैसे जमा किए जाते हैं और विड्रॉ किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ करंट अकाउंट। इट इज कॉल्ड एज अ करंट अकाउंट। सो जब बिजनेस के नाम पे अकाउंट होता है जहां पे बिजनेस पैसा जमा करता है और जब चाहे तब पैसा ले सकता है, दैट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट। जब किसी इंडिविजुअल अकाउंट में पैसा जमा किया जाता है और जब चाहे तब निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ savings account, or you can call it as saving deposit. How demand deposit is different from saving deposit? Understand. इनके पास 10 लाख रुपए है, इन्होंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए। कितने साल के बाद मिलेंगे? 5 साल के बाद। उससे पहले मांग सकता है क्या? नहीं। लेकिन अगर इसी 10 लाख रुपए को उन्होंने सेविंग डिपॉजिट में
जमा करवा, यानी कि सेविंग अकाउंट। अगर सेविंग अकाउंट में ये 10 लाख रुपए अगर यश जमा करवाता है ऑन 1 जनवरी 2022, let's say in the same year itself, on 31 December 2022, he wants that 10 lakh rupees back. He can just go to bank, write the check and get the money immediately. और जब भी वो चेक प्रेजेंट करेगा उसी वक्त बैंक को उसको पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब कस्टमर डिमांड करेगा तब उसको पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम? डिमांड डिपॉजिट। क्या कहेंगे हम इसे? डिमांड डिपॉजिट। जब पैसा डिमांड किया जाएगा तब पैसा देना पड़ेगा, जब पैसा डिमांड किया जाएगा तब पैसा देना पड़ेगा, इसलिए क्या कहेंगे हम इसे? डिमांड डिपॉजिट। अभी क्लियर? दोनों के बीच का फर्क समझ में आता है? वैसे ही इनका बैंक, एक मिनट, वैसे ही उनका बिजनेस है, उनके बिजनेस में आज 10 लाख रुपए आए, उन्होंने आज बैंक में 10 लाख रुपए जमा कर दिए, कल उनको पेमेंट करना है उसके लिए 8 लाख रुपए, तो कल 8 लाख रुपए वापस बैंक से लेकर आ गए। तो जब मर्जी आए तब जमा किया, जब मर्जी आए तब निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स। जमा कर दिया लेकिन जब मर्जी तब नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कब? टाइम के बाद, तो वो क्या हो गए? टाइम डिपॉजिट। जब मर्जी तब जमा कर दिया, जब मर्जी तब निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स। हाँ, डिमांड डिपॉजिट में इंटरेस्ट रहता है लेकिन कम होता है। उसके अंदर पॉइंट इसने अच्छा कहा है कि भाई जब मर्जी जाए तब पैसा जमा कर देंगे, जब मर्जी जाए तब पैसा ले लेंगे, तो बैंक का इसमें क्या फायदा? नॉर्मली सेविंग्स हम थोड़े लॉन्गर पीरियड के लिए रखते हैं। करंट अकाउंट का भरोसा नहीं, बिजनेस में पैसा कभी भी ले सकता, सुबह जमा किया तो रात को पैसा लेके जा सकते हैं। इसीलिए करंट अकाउंट डिपॉजिट्स आर जीरो इंटरेस्ट अकाउंट। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? जीरो इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब बैंक में पैसा बिजनेस वाला कब रखेगा कब निकलेगा इसका भरोसा नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देते। लेट्स फॉर एग्जांपल से अगर फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 7% इंटरेस्ट बैंक दे रही है, तो रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा एक साथ दे रहा है क्या यश? नहीं, 2-2 लाख करके दे रहा है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लेट से 5% होगा, कम होगा, क्योंकि पैसा पार्ट्स में आ रहा है। जितना पैसा इस्तेमाल करने को मिलेगा, जितने टाइम के लिए मिलेगा, उसके हिसाब से बैंक इंटरेस्ट देती है। सेविंग डिपॉजिट पे पैसा नॉर्मली 1 साल के लिए रख सकता है कोई भी, तो नॉर्मली यहाँ पे इंटरेस्ट 2 या 3% होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि पैसा कभी भी निकाल सकता है ना। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि इंडिविजुअल जब भी अपने सेविंग्स जमा करता है तो थोड़े बहुत पीरियड के लिए जमा कर ही देता है, इसीलिए सेविंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 2 to 3%। लेकिन बिजनेस का भरोसा नहीं है, सुबह भरे दोपहर में भी पैसे लग सकते हैं, कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं और कभी विड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इसको जीरो इंटरेस्ट अकाउंट कहा जाता है, या फिर इसके अंदर इंटरेस्ट कोई भी बैंक नहीं देती। किसी भी बैंक में करंट अकाउंट अगर बिजनेस का खोलो, पैसा कितना चाहे उतना जमा कर सकते हो, जितना चाहे निकाल सकते हो, जब चाहे। क्वेश्चंस लेता हूं, मेरा पहले पॉइंट कंप्लीट होता है। जितना चाहे जमा कर सकते हो, जितना चाहे निकाल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्वेश्चन आएगा कि सर फिर जमा क्यों करना है? सेफ्टी, गब्बर सिंह पैसे लूट लेगा घर पे रहा तो, इससे अच्छा बैंक में पैसा रहेगा तो पैसा सेफ रहेगा। बैंक को सर प्रॉफिट कैसे मिलेगा? फिर रूल क्या कहा मैंने? बैंक ऑलवेज विंस। तुम जब मर्जी तब पैसा जमा कर रहे हो, जब मर्जी तब पैसा निकाल रहे हो, तो बैंक तुम्हारा पैसा करंट अकाउंट को तो लोन नहीं दे सकता, तो बैंक पैसे कैसे कमाएगा? कैश हैंडलिंग चार्जेस डेबिट गिरते उस अकाउंट पे, किसका पैसा नहीं छोड़ते बैंक। चेकबुक आता है, एक चेक की 3 रुपए लगाती है बैंक। कितने? 3 रुपए। आपके इसमें कभी चेक करो, ये छोटी छोटी, मैंने क्या कहा, आपका बहुत होमवर्क बढ़ने वाला है, फील्ड वर्क बढ़ने वाला है। एक चेकबुक का चार्ज कितना? एक चेकबुक का जो चेक होता है, एक चेक का चार्ज कितना होता है? 3 रुपए। एनएफटी आरटीजीएस जो होता है ऑनलाइन पेमेंट, उसके करने के भी कमीशन लिए जाते हैं आपसे। मोबाइल में एसएमएस आते हैं बैंक के, उसके भी चार्जेस होते हैं। करंट अकाउंट में जितना चाहे पैसा जमा करना है, जितना चाहे निकालना है निकाल लो, वो पैसा बैंक तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसके ऊपर लगा देते कैश हैंडलिंग चार्जेस, डेबिट मार देते। समझ में आ रही है बात? अब बोल, क्वेश्चन वही था कि भाई बैंक में अगर करंट अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, जब मर्जी चाहे जब जमा कर रहे, जब मर्जी जब निकल रहे, तो बैंक का क्या फायदा? थंब रूल, बैंक ऑलवेज विन। बैंक कभी नुकसान में रहता नहीं। कोई भी चीज करने दो, बैंक पैसा कमा के छोड़ता है, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती। दुनिया के 2 रूल याद है ना? पहला रूल, ना बीवी ना मैया ना बाप बड़ा ना भैया, होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया, पहला। दूसरा रूल, नथिंग इज फॉर फ्री। दुनिया में कोई भी चीज
मुफ्त में नहीं होती, हर चीज की कीमत होती है, हर चीज की कीमत होती है और फ्री चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। बात समझ में आया? डिपॉजिट्स is one of the primary function of bank. Bank is a financial institution which accepts deposits and grants loan. Deposits are of two types. One is called as time deposits, another is called as demand deposits. Whenever deposit is made for a certain period and it can be demanded only on the expiry of the time period, it is called as time deposits. Time deposits are of two types: fixed deposits and current deposits. When an amount is deposited in lump sum, it is called as fixed deposit. When amount is deposited in installment, it is called as recurring deposits. Fixed deposit and recurring deposits can be claimed only on the expiry of the time period, whereas demand deposits are the deposit which can be deposited at any time and can be demanded any time. जब मैंने मेरे सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए, जब यश ने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा किए और उसको 25,000 की जरूरत है, तो वो कौन सा कार्ड यूज करेगा? डेबिट कार्ड। पैसे जमा करके खर्च कर रहा है। उसने 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा किया, उसको 25,000 की जरूरत है ट्यूशन फीस भरने के लिए। वो एटीएम पे गया, डेबिट कार्ड को इंसर्ट किया, पिन डाला और 25,000 रुपए निकाल ली। उसको जरूरत ही निकाल ली, जब जरूरत है तब निकाल ली। बैंक बोलता है क्या, एटीएम में आएगा क्या? सॉरी, वी कैन डू नॉट हैव फंड्स, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं, बिकॉज इट इज अ डिमांड डिपॉजिट्स। वो बैंक में गया चेक लेकर, 1 लाख रुपए का चेक है, मुझे मेरे एजुकेशन के लिए चाहिए, 10 लाख रुपए उसने जमा किया, उसको इमीडिएटली पैसा देना पड़ेगा। तो सेविंग अकाउंट में जब आप इंडिविजुअल के बतौर पैसा जमा करते हो, उसे जब चाहे तब डिमांड कर सकते हो, और जब डिमांड करोगे तब उस वक्त बैंक को पैसा देना पड़ेगा। कोई भी बैंक आज तक इतिहास में ऐसा नहीं बोल सकती कि हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। अगर आपके अकाउंट में पैसा है, अगर आप चेक से डिमांड कर रहे हो, तो आपको उसी मोमेंट पे उसी दिन पेमेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है। दे हैव टू गिव इट एट दैट सेम मोमेंट एट एनी कॉस्ट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? डिमांड डिपॉजिट्स। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो जब चाहे तब डेबिट कार्ड के द्वारा आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कार्ड जो है वो दो तरह के होते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वो होता है जहाँ पे क्रेडिट लिमिट के द्वारा पैसे खर्च किए जाते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है। डेबिट कार्ड वो होता है जहाँ पहले पैसे जमा किए जाते हैं और उसके बाद पैसों का व्यवहार किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। Time deposits are of two types: fixed deposits and recurring deposits. Demand deposits are of two types: saving deposits and current deposits. Saving deposit is of individual, व्यक्तियों का जो होता है खाता, लेकिन current deposit is of business. मेरे नाम का करंट अकाउंट नहीं होता, दिनेश शर्मा करंट अकाउंट कभी नहीं बनेगा। शर्मास प्रोफेशनल क्लासेस का करंट अकाउंट बनता है, लेकिन दिनेश शर्मा का क्या बनेगा? इंडिविजुअल अकाउंट, यानी सेविंग अकाउंट। मेरा बनेगा सेविंग अकाउंट, क्लास का बनेगा करंट अकाउंट। दोनों भी केस में पैसा कितना भी जमा कर सकते हैं और जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। अभी क्लियर? अभी क्लियर? एनी डाउट? हाँ, नॉर्मली क्या है, एफडी तोड़ना मतलब वही कि मैच्योरिटी टाइम पीरियड्स। अब देखो, जब हम समझ रहे हैं टाइम डिपॉजिट्स, जब थ्योरी और प्रैक्टिकल करने जाओगे ना तो बहुत फर्क होगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इसलिए मैं क्या करता हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग क्यों है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ भी मिलवाता हूं। इसने एक पॉइंट अच्छा बोला कि एफडी तोड़ना है, एफडी तोड़ना है। अब जैसे सोहम ने कितने पैसे यश ने पैसा कितना जमा किया? 10 लाख रुपए। कितने साल के लिए जमा किया? 5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या प्रॉमिस है इसको? 7%। ये 2 साल के बाद ही कहोगे मुझे मेरी एफडी तोड़ना है। यस, आई वांट टू विड्रॉ माय मनी, आई एम डिमांडिंग माई मनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। ऐसे केस में प्रैक्टिकली टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर देखोगे, टेक्स्ट बुक थ्योरी के हिसाब से देखोगे, तो यश को पैसे 5 साल के बाद ही मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट भी किया है तो आपको बिफोर टाइम पीरियड आपका पैसा मिल सकता है, लेकिन वहां पे प्रैक्टिकली एक और चीज चेंज हो जाती है। अगर वो 2 साल के बाद इमीडिएटली पैसा मांग रहा है, वो बोल रहा है मुझे एफडी तोड़ना है, मेरी तुम्हारी लॉजिक में मुझे एफडी तोड़ना है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। 2 साल के बाद उसको पैसा तो मिलेगा, लेकिन 2 साल का ब्याज कुछ नहीं मिलेगा। He'll get 0 इंटरेस्ट। ब्याज कब मिलेगा? जब उसने टर्म्स पूरे कंप्लीट किए। उसने 5 साल अगर पैसा रखा तो ही उसको ब्याज मिलता है। इन बिटवीन 2 साल के बाद ही अपनी एफडी तोड़ देता और पैसे ले लेता है बैंक से, तो बैंक उसके ऊपर आपको
जीरो इंटरेस्ट देगा। ऐसा नहीं है कि मेरे 5 साल का एफडी है, मैंने 2 साल तोड़ दिया तो मुझे 2 साल का ब्याज मिल गया, ऐसा नहीं। बैंक नुकसान नहीं करके लेती, बैंक पैसा तुमको देगी लेकिन तुम्हारे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देगी। यानी 2 साल बाद भी इसको कितने मिलेंगे? 10 लाख रुपए। आर गेटिंग माय पॉइंट? और कोई सवाल? और कोई सवाल? यस, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, फील्ड वर्क आज सबको करना है। आप सब लोगों को आज बैंक विजिट करना है। आज आप सभी लोगों को बैंक विजिट करना है फोटो के साथ, है ना? पता होना चाहिए ना कौन गया कौन नहीं गया। अगर पता चला घर वाले चले गए तो फिर क्या मतलब आया टास्क एक्टिविटी का? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू विजिट अ बैंक टुडे, यू हैव टू विजिट अ बैंक। इसीलिए मैंने कहा था पूछ के आइए कि आपके घर वालों के अकाउंट कहाँ पर है। उस बैंक में आपको विजिट करना है। सबसे पहले तो बाहर से सेल्फी निकालना है बैंक के बोर्ड के साथ, फर्स्ट क्लास, है ना? मेकअप लाली वगैरह सब कर लेना, लिपस्टिक विपस्टिक फर्स्ट क्लास। तो मेकअप विकअप करके फिल्टर वाले अच्छे यूज करना क्या, और पोज भी जरा ढंग के देना, जरा एमआईडीसी वाले पोज मत देना। तो बैंकों के बाहर जाकर सबसे पहले तो सेल्फी लेना है। सिर्फ सेल्फी लेने नहीं जाना, बैंक के अंदर भी जाना है ना? बैंक के अंदर भी जाना है। पहला सवाल मैं कल पूछूंगा आने के बाद कि ये कौन सी तरह की बैंक है जहां आपने विजिट किया है। क्या वो नेशनलाइज है? नेशनलाइज है तो क्या प्राइवेट है? क्या वो कमर्शियल बैंक है? कमर्शियल बैंक है तो क्या वो नेशनलाइज्ड है? क्या वो प्राइवेट है? या फिर वो फॉरेन बैंक है? फॉरेन बैंक परवड़ी में ना मिलना बेटा, वेदर इट इज नेशनलाइज्ड और वेदर इट इज प्राइवेट। या फिर आप जिस बैंक में जा रहे हो क्या वो कोऑपरेटिव बैंक है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा मेरा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वहां जाकर इन सभी डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट की पूछताछ करना है। क्या करना है? इन सभी के डिपॉजिट्स की पूछताछ करना है। ठीक है, आपको पूछना है कि मुझे डिपॉजिट करना है पैसे, और पैसे जमा करने के लिए एफडी करना है। तो एफडी जमा करेंगे तो उसका ब्याज दर कैसा होगा, फिर वो बताएंगे 5 साल के लिए इतना इंटरेस्ट देते हैं हम, 7 साल के लिए इतना इंटरेस्ट देते हैं, 10 साल के लिए इतना इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उनको बोलना है कि हम रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं क्या। फिर उनको बोलना है मेरा सेविंग अकाउंट ओपन हो सकता है क्या। सेविंग अकाउंट के लिए क्या कंडीशन है, क्या फॉर्म है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैं करंट डिपॉजिट कर सकता हूं क्या। तो आपको इन डिपॉजिट के बारे में प्रैक्टिकल जो कुछ भी बैंक से है इंफॉर्मेशन गैदर करके कल क्लास में आने का है। आई बात समझ में? आपको बैंक में जाके क्या पूछना है कि भाई मुझे फिक्स डिपॉजिट खोलना है, रिकरिंग डिपॉजिट खोलना है, सेविंग डिपॉजिट खोलना है और करंट डिपॉजिट खोलना है। अब बात ऐसी है कि एक ही बैंक में सब अकाउंट तो खोलने से रहे, क्योंकि वो बैंक वाला तुमको बोलेगा तुला नेमकं करायचं काय ते तरी सांग, है ना? तो उसको ऐसे बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन की सबसे अगर मैं फिक्स डिपॉजिट करूं तो फिक्स डिपॉजिट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लस फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये भी पूछ लेना। एफडी तोड़ू तो क्या लगेगा, तुमको आंसर मिल जाएगा कि अगर मैं 5 साल के लिए जमा करूँ तोड़ू। बैंक वाले मामा को परेशान करो ना, पूरी दुनिया को परेशान करते हैं नेशनलाइज वाले। तुम भी जाके उनको परेशान करो कि भाई अगर हम एफडी करें और टाइम से पहले अगर तोड़ दे तो उसका हमारे डिपॉजिट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। फिर इसके बाद क्या करना है, उनको पूछना है रिकरिंग डिपॉजिट के टर्म्स कंडीशन क्या है। वो भी पूछना है कि रिकरिंग डिपॉजिट अगर तोड़ दे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। रिकरिंग डिपॉजिट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पिग्मी कलेक्शन। मालूम है पिग्मी कलेक्शन? वो रोज 100 रुपए लेके जाते, वो रिकरिंग डिपॉजिट है। पैसा एक साथ भरते क्या अपन पिग्मी में, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए रोज भरते, लेकिन बाद में अमाउंट लमसम आता है। लेकिन जब तक के लिए पिग्मी, अगर पिग्मी अपना 1 साल का है, 1 साल से पहले आप पिग्मी छोड़ सकते हो क्या? नहीं। सो दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पिग्मी मालूम है सब लोगों को, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए पिग्मी करते। सो दैट पिग्मी इज रिकरिंग डिपॉजिट, जहां पे पैसे रोजाना हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, अमाउंट अपने को लमसम पीरियड के बाद। अब पिग्मी का पहला पैसा मिलता है क्या? नहीं। पिग्मी का पैसा अगर पहला लिया तो अपना नुकसान होता है, अपने को ब्याज नहीं मिलता, खाली भरे वाले पैसे मिलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में पूछताछ करनी है। फिर इसके बाद मुझे सेविंग अकाउंट खोलना है, तो सेविंग अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या फॉर्म है, तो उस बैंक का सेविंग अकाउंट का फॉर्म, फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म, रिकरिंग का फॉर्म, करंट अकाउंट का फॉर्म, सब फॉर्म कलेक्ट करने के आपको।
क्यों नहीं देंगे? कस्टमर बन के जाओ जरा। लग रहा है तुमको भाई ऐसा हमारे हालत में घर जाओ, फॉर्मल फिर्मल पहनो, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि नहीं भाई साहब आए हैं करके, है ना? तेरा तो ठीक है, तेरे को तो कोई भी दे देगा, वो पीछे वो हमारे छोटे छोटे बच्चों का देख, सोच उनको कौन देगा, है ना? अब वो तुम्हारे ऊपर है। वो बोले तुमको क्यों चाहिए, तुम तो छोटे लग रहे हो। भाई मेरे पिताजी को ओपन करना है, बोलो हमारे पेरेंट्स को ओपन करना है, हमारे पेरेंट्स ने काम दिया हमें, ठीक है? तो आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, बेसिक इतना तो देगा। इन्फॉर्मेशन तो कोई भी दे देगा, फिक्स डिपॉजिट की इन्फॉर्मेशन, सेविंग डिपॉजिट की इन्फॉर्मेशन, रिकरिंग डिपॉजिट की इन्फॉर्मेशन और करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। उनको पूछ लेना, अगर मैं करंट अकाउंट खोलूँ तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा क्या, अगर मैं सेविंग अकाउंट खोलूँ तो इंटरेस्ट मिलेगा क्या, सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उसकी फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सेविंग अकाउंट का फॉर्म मांगो उनसे, करंट अकाउंट का फॉर्म मांगो उनसे, फिर उनसे फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म मांगो। सारी पूछताछ करके डिपॉजिट का पूरा प्रैक्टिकल ब्यौरा चाहिए मुझे कल। इसलिए सोच समझ के बैंक को जाओ। एसबीआई बैंक में जाना मत, हकल के देंगे। तो बैंक भी ऐसी देखो जहां आपने पहचान के है, या फिर डैडी के पहचान के, तो डैडी को बोल देना कि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन लेना। ऐसा कोई मना नहीं करता इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, बेजार होना पड़ेगा, क्योंकि धंधे में आए हो तो धंधा करना सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक में मैं बैठ के पढ़ा दूं कि फिक्स डिपॉजिट कैन बी क्लेम्ड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड, से मजा नहीं आएगा। एफडी फुटती भी है, टूटती भी है, लेकिन उसके बदले में बैंक क्या लेती है पता होना चाहिए। मैं तो यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन तुम जब थ्योरेटिकली जाके सीखोगे तब समझ में आएगा करंट अकाउंट पे जीरो इंटरेस्ट क्यों है, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट क्यों है। टास्क इंटरेस्टिंग है ना? तो अच्छी दोस्ती करके आना, क्योंकि अगले हफ्ते में और 2-3 बार जाना है। आज तो डिपॉजिट के लिए जाना है, कल लोन के लिए जाना पड़ेगा। आज डिपॉजिट के लिए बैंकों को जाना है, कल किसके लिए जाना है? लोन के लिए। लड़कियों का ठीक है, वो बोल सकती है आई वॉन्ट वेडिंग लोन। तुम्हारा कुछ नहीं, तुम शिक्षा के लिए, तुम पढ़ाई के लिए, एजुकेशन लोन के लिए चले जाना। बोलना हमारे सर की फीस बहुत ज्यादा है तो हमको एजुकेशन लोन चाहिए, एसपीसी क्लास, वी वांट एजुकेशन लोन। ओके, आज आपको डिपॉजिट के लिए जाना है, कल बैंकों में आपको लोन के लिए जाना है, और परसों आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए जाना है। एक और इंफॉर्मेशन लेके आने की आज, क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसकी क्या प्रोसेस है? चलता चलता। अगर तुमको लग रहा है एक बैंक वाला बहुत बेइज्जती करेगा, तो एक बैंक में जाओ, वहां पे सेविंग का पूछो, दूसरे बैंक में जाओ, वहां पे करंट का पूछो, तीसरे बैंक में जाओ, वहां पे रिकरिंग का पूछो। हर एक बैंक से, लेकिन चीजें दस्तावेज सब लाना है, फोटो भी लाना है। जितने बैंक में विजिट किया उसका सेल्फी आना चाहिए ग्रुप पे, प्लस डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आएगा तो कल के जब तुम बड़े बनोगे, ग्रेजुएट बनोगे, आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि आपल्याला एफडी करायचं है, वहां जाके बैंक में ऐसा हवले के जैसे नहीं रहने का। पढ़े लिखे गवार जो रहते ना, बीकॉम ग्रेजुएट परवनी की हालत क्या है मालूम है क्या? आई एम बीकॉम, उसको ले बोले 10,000 बैंक में भर के आती है, ओ मामा थोड़े भरून देना। करते ना बैंक में, ऐसे करते हैं ना। ऐसी चीजें हमारे साथ ना हो। ये फॉर्म लेकर आओगे तो जब देखोगे तो समझ में आएगा कि प्रोसीजर क्या होता है। कल को आपके पिताजी बोले कि सेविंग अकाउंट खोलना है घर में किसी का, मैं कर दूंगा, आपको पता होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट करना है शादी के लिए, मैं कर दूंगी पापा, मुझे पता है ना? तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, कैसे करना है, वो आपको पता होगा। सेविंग डिपॉजिट, कल को बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद के बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन करना है, तब जाके ये सारी चीजें यूजफुल होगी। दिस इज हाउ माई टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वी नीड लॉट ऑफ फील्ड वर्क, वी नीड प्रैक्टिकल लर्निंग। Theory is the most interesting thing to learn. It has been more than a week now. Have I used my textbook anywhere? Am I using my reference notebook anywhere? Or is it just going out of my mind? The syllabus is running just out of mind. And my dear friends, each and everything which we are doing right now and learning right now, and I'm teaching you right now, forms around 20 to 30 marks of your 11th and 12th standard syllabus. ये कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाने वाली। 25 से 30 मार्क का सिलेबस आपका 11-12 का इतने सब चीजों के ऊपर है। कितना? 25 से 30 मार्क।
तो जो भी चीजें करो बड़े इंटरेस्ट लेके करो। ओके, सो आज आपका बैंक विजिट का इतना टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है। ओके, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? लेकिन पूरा प्रोसीजर चाहिए मुझे कल। ओके, थैंक यू सो मच।